تیرے کروڑوں شکر ہے، تیری تعریف بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک اللہ کو نے پہنچایا، جس طرح سے اللہ کو نے ہمیں پہنچایا مولا کریم اسی طرح سے ہمیں عبادت کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو مسجد کی رونق اسی طرح سے برقرار رہے گی یا پھر کچھ آگے پیچھے ہوگا؟ شروع میں آمین زور سے، دھیرے دھیرے آمین ہوتا ہے کہ نہیں؟ رمضان کے اندر کئی لوگوں کو کئی کوالٹی کی چیزیں کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے، کئی چیزیں کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ کچھ لوگ تو موبائل کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ چاند مبارک، رمضان مبارک، رمضان کی پہلی تراویح مبارک، رمضان کی پہلی سحری مبارک، رمضان کا پہلا روزہ مبارک، رمضان کی پہلی افطاری مبارک۔ اور کوئی کام نہیں ہے، اور کوئی کام نہیں۔ میسج بھیج کر کے پاگل کر دیتے ہیں سامنے والے کو۔ بیچارہ سامنے والے کو کہنا پڑتا ہے بھیجنا ہے تو بھیج، بریانی بھیج، حلیم بھیج، کچھ دوسری چیز بھیج، یہ سارے بھیج کر کے موبائل تو غصہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب گھڑی گھڑی وہی میسج کرتا ہے تو آدمی سامنے والا غصہ ہوگا کہ نہیں؟ کچھ رمضان کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، کچھ روزے دار کی الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے۔ کچھ تو روزے دار الحمدللہ شروع سے لے کر کے آخر تک، کچھ تو ایسے ہیں کہ روزہ تو نہیں رکھیں گے مگر افطاری چھوڑیں گے نہیں، اور افطاری چھوڑیں گے نہیں۔ اور کچھ تو ایسے کہ روزہ تو نہیں رکھیں گے مگر سحری بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں بھائی؟ اللہ ناراض ہو جائے گا، سحری بھی نہیں کرتا بندہ ہے کہ نہیں؟ رمضان چھوڑ رہا اس پر اللہ ناراض نہیں ہو رہا، سحری اور افطاری چھوٹ رہے تو اس پر اللہ ناراض ہو رہا۔ صاحب سحری اور افطاری چھوڑ نہیں سکتے، یہ تو کھانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا کلو واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ بھائی کھانے کا مہینہ تو نہیں، کھانا بند کرنے کا مہینہ ہے، یہ کھانا بند کرنے کا مہینہ ہے۔ کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں شروع میں پورا پکا، بیچ میں غائب، آخری دن آپ کو دکھائی دیں گے، پورا کے پورا رمضان غائب، آخری دن میں دکھائی دیں گے۔ ایسے روزہ قبول ہے؟ پکا ارادہ کیجئے کہ شروع سے لے کر آخر تک مسجد کی رونق بنے رہیں گے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلا روزہ رکھے 28 دن تک روزہ نہیں رکھیں گے، 29واں دن آئیں گے آخری روزہ رکھنے کے لیے۔ بولے کیوں ایسا؟ بولے مولوی صاحب ہم نے روزہ کو گھیر دیا ہے، باپ کی وراثت میں زمین مل گئی، باؤنڈری لگا رہا ہے کہ نہیں؟ باؤنڈری لگا رہا ہے کہ پہلا اور آخر بیچ والا آ گیا۔ اس لیے میں بولتا ہوں کہ وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے، الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پورا بیچ والا چھوڑ دیا، شروع اور آخر والا پورا ہو گیا۔ ہوتا ایسا؟ نہیں ہوتا۔ اس لیے پورا پکا ارادہ کریں کہ اس رمضان کو روزہ رکھ کر کے گزاریں گے، روزہ رکھ کر کے گزاریں گے۔ اللہ تو وہ ہے، بھوکے رہنا اللہ کسی بھی بندے کو نہیں دیکھنا چاہتا، بھوکا رہنا کسی بھی بندے کو اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، مگر یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ بھوکے رہنے کو بھی عبادت بنا دیا ہے۔ بشارت ہو مومنوں کہ رمضان آ گیا، بشارت ہو مومنوں کہ رمضان آ گیا، فرش والے کے لیے عرش کا زینہ آ گیا۔ یہ عرش والے کی طرف سے ایک ایسا بہترین تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا کہ اے آسیو آؤ، گلے ملنے کا وقت ہے، آسیو ساحلے گلے ملنے کا وقت ہے کہ رحمت والے کی طرف سے سفینہ آ گیا۔ معذرت، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، زینت بنایا ہے، اتنا بہترین بنایا ہے کہ شروع سے لے کر کے آخر تک چہل پہل رہتی ہے، آخر تک الحمدللہ ہر ایک کے دلوں کے اندر خوشی رہتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اور رمضان جیسے ہی پار ہوتا آئندہ رمضان کی چاہت دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ رمضان کی محبت ہمارے سینے کے اندر جو ہے، یہ سب سے بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالح دعا کرتے اللہ رمضان تک پہنچا دے، اللہ رمضان تک پہنچا دے، اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مومنو اگر تم جان لو کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، دعا کرتے رب سے تمنا
तमन्ना करते कि पूरा साल रमजान हो जाता है। अल्लाह, ये किसी और की नहीं बल्कि ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले हैं कि तुम अगर जान लो कि रमजान की मकाम, रमजान की फजीलत और उसका मकाम क्या है, पूरे साल तमन्ना करते कि पूरा साल रमजान हो जाता है। चलिए एक आयत करीमा जो आज पढ़ी गई तरावी के अंदर, पहले पारा के अंदर सूरा बकरा की आयत नंबर 74 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये जो 11 महीने हमारा दिल जो जंग लग चुका है ना, हमारे दिलों के अंदर गुनाहों का पर्दा जो चढ़ रहा है ना, 11 महीने तक ऐसे घूमे कि हमारे ज़हनो दिमाग के अंदर अल्लाह की याद भी नहीं। जिस तरह से हमारे ज़हनो दिमाग के अंदर, हमारे दिलों के अंदर पर्दा चढ़ गया, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा बकरा की आयत नंबर 74 के अंदर इरशाद फरमाया, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल-हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयख़रुजु मिनहुल मा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल दिया, ऐ लोगों, फिर तुम्हारा दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, तुम्हारा दिल पत्थर की तरह कसत हो गया है, पत्थर की तरह सख्त हो गया है। और अशद्दु क़स्वा, पत्थर तो कम है, उससे ज्यादा तुम्हारा दिल सख्त हो चुका है। और लोगों, रमजान का महीना अल्लाह ने अता किया, अपने दिलों को नरम कर दीजिए, अपने दिलों को अल्लाह की आग से नरम कीजिए, अपने दिलों को आखिरत की आग से नरम कीजिए, अपने दिलों को कब्र की आग से नरम कीजिए, अपने दिलों को मैदान महशर की आग से नरम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारा दिल पत्थर की तरह कसत हो गया है, पत्थर की तरह सख्त हो गया है, पत्थर की तरह कठोर बन चुका है। और अशद्दु क़स्वा, उससे ज्यादा सख्त हो चुका है। बाद पत्थरों के अल्लाह तबारक व तआला ने कैफियत बयान की, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार, बाद पत्थर ऐसे हैं जिससे नहरें जारी होती है। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयख़रुजु मिनहुल मा, बाद पत्थरों की कैफियत है कि वो फट पड़ते हैं और उससे पानी निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बाद पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। ये पत्थरों की कैफियत है, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से कभी फट पड़ते हैं, अल्लाह के खौफ से कभी चश्मे आलूद हो जाते हैं, अल्लाह के खौफ से कभी ऊपर से नीचे लुढ़क जाते हैं। ऐ इंसान, तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह का डर तुम्हारे सीने के अंदर क्यों नहीं है? अल्लाह का खौफ तुम्हारे सीने के अंदर क्यों नहीं है? क्यों तुम्हारा दिल पत्थर हो चुका है? अल्लाह की याद से तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों जारी नहीं है? तुम्हारा दिल फर्राता क्यों नहीं है? तुम्हारा दिल कांपता क्यों नहीं है? और लोगों, रमजान का महीना है, दिल को नरम करने वाला महीना है, दिल को ठंडक करने वाला महीना है, दिल की कसावट को दूर करने का महीना है। दिल के अंदर जो दिल सख्त हो चुका है पत्थर की तरह, उस पत्थर दिलों को मोम बनाने का मौसम आ गया है। उन पत्थर दिलों के अंदर अल्लाह की खशियत आने का वक्त आ गया है। अपनी आंखों को बहने में दीजिए, अपनी आंखों से इस्तेमाल हो जाइए, अपने आंखों से आंखें जारी कीजिए। आंखों से निकलने वाले आंसू दुनिया के आंखों को बुझा नहीं सकती है, मगर काबिल के रब की कसम है, अगर आपकी आंखों से अल्लाह की खशियत से आंसू बह गए, अगर आपकी आंखों से अल्लाह के डर से आंसू निकल पड़े, अल्लाह के कहना, अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आंख जहन्नम की आग को नहीं देखेगी जो आंख से अल्लाह के डर से आंसू निकल आया। तो लोगों सुनो, ये रमजान का महीना है, अपने दिलों को नरम करने का महीना है। अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ लाइए, अपने दिलों के अंदर अल्लाह की खशियत लाइए। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जाइए, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के रास्ते को आसान बना देगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क्या तुम ये जान रहे हो कि तुम्हारे आमाल से अल्लाह बेखबर है? अल्लाह बेखबर नहीं है, अल्लाह बाखबर है। हर एक चीज को अल्लाह जान रहा है। रुकू के
झुकने को, सजदे में सर रखने को, तस्बीहात पढ़ने को, क़याम करने को, और पूरा दिन भूख प्यास को बर्दाश्त करने के लिए सारी चीजों पर अल्लाह तबारक व तआला की निगाह है। एक एक चीजों पर अलग अलग अल्लाह तबारक व तआला अज्र अता करेगा। और जब अल्लाह अपने बंदों पर रहमत करम करने वाला होता है तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को रमजान जैसा महीना तोहफा अता करता है। लिहाजा ये रमजान का बेहतरीन महीना है। अपने दिल की आलूदगी को दूर कीजिए, अपने दिल की गंदगी को दूर कीजिए, अपने दिल के मैल और कुचेल को दूर कीजिए और अपने दिल को पाक और साफ कीजिए। चलिए दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मौला करीम इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार रमजान के महीने में खूब खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह रमजान में तरावीह की एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह रमजान में लैलतुल क़द्र का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह रमजान में रोजा रखने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह रमजान में दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह रमजान में कसरत के साथ तेरा जिक्र करे उसकी तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार रमजान में कुरान की तिलावत कसरत के साथ करे उसकी तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी सेहत के अंदर आफियत अता फरमा। ए अल्लाह हमारी सेहत के अंदर आफियत अता फरमा। ए अल्लाह खैर व बरकत के साथ रमजान गुजारे उसकी तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार जो बीमार है उनकी बीमारी को कुछ शिफाए आजिला अता फरमा, शिफाए कामिला अता फरमा। मौला करीम तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह जिस्मानी तौर पर बहुत सारे ऐसे मरीज मौजूद हैं जो जिस्मानी तौर पर लागर हैं, कमजोर हैं। मौला करीम उनकी जिस्म के अंदर ताकत अता फरमा। ए अल्लाह हर एक को रमजान मुबारक के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम खूब खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा। पाक परवरदिगार जो माँ बहन बीमारी की हालत में मुब्तला है मौला करीम उन्हें शिफाए आजिला अता फरमा। ए अल्लाह उनकी सेहत के अंदर आफियत अता फरमा। ए अल्लाह उनको रमजान में भी बढ़ चढ़ करके ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इफ्तारी की तैयारी, सहरी की तैयारी, घरों को उठाना मौला करीम उनके अंदर हिम्मत पैदा फरमा। ए अल्लाह उनके अंदर ताकत पैदा फरमा। ए अल्लाह उनके अंदर आफियत अता फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम हमारी माँ बहनों की सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमा। पाक परवरदिगार उनकी बीमारी से शिफाए आजिला अता फरमा। मौला करीम जो दुनिया से गुजर चुके हैं पाक परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। मौला करीम हम नहीं जानते कि कब्र के अंदर उनकी क्या हालत हुई होगी, क्या हालत हो रही है। मौला करीम हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन है, हमारे चचा हैं, हमारे अब्बा हैं। मौला करीम उन सब की तो मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह उनके कब्र को तो नूर से भर दे। ए अल्लाह उनके कब्र के अंदर जन्नत का बिछौना बिछा दे। ए अल्लाह उनके कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खोल दे। मौला करीम उन पर आफियत अता फरमा। पाक परवरदिगार आलम उनके कब्रों को तू नूर से भर दे। मौला करीम उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम कल क़यामत के दिन मैदान महशर की सख्ती से तो हम सबको महफूज फरमा देना। ए अल्लाह हमारा हिसाब किताब आसान फरमा देना। अल्लाहुम्मा हसबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा हसबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा हसबना हिसाबन यसीरा। ए अल्लाह हमारा हिसाब आसान कर देना। ए अल्लाह हमारा हिसाब आसान कर देना। मौला करीम एक दिन की हिसाब हम एक दिन का हिसाब नहीं कर सकते, अल्लाह पूरी जिंदगी का हिसाब कैसे देंगे। अल्लाह हम पर हिसाब आसान कर देना। अल्लाह हमारे हिसाब आसान कर देना। मौला करीम टूटी फूटी इबादतों को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। अल्लाह टूटी फूटी इबादतों को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। अल्लाह जहन्नम की आग से तो हम सबको महफूज फरमा देना। अल्लाह जहन्नम के आग से तो हम सबको महफूज फरमा देना। अल्लाह जहन्नम निहायत ही बुरी जगह, ठहरने के एतबार से निहायत ही बुरी जगह है। मौला करीम तो हम सबको अपने फजल और करम से जहन्नम के आजाब से बचा लेना। अल्लाह जहन्नम के आजाब को देख करके बड़े बड़े नबी के घुटने टेक देंगे हमारे आमाल क्या है। ए अल्लाह हमें जहन्नम के दहते व अंगार से बचा लेना।
اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اے اللہ ہم سب کے اعمال کو قبولیت کا درجہ عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں جنت کے وارثین بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت کے وارثین بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ربنا تقبل دعا، ربنا تقبل دعا، ربنا تقبل دعا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين۔